بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تشاکل کا علم حاصل کرتے ہیں کہ تشاکل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تشاکل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہم شکل ہونا، مشابہت ہونا، ایک جیسا ہونا، برابر ہونا میں آتا ہے۔ یعنی ایسی شکلیں جو ہم شکل ہو یا ایسی شکلیں جو ایک دوسرے سے مشابہت رکھتی ہوں، جو ایک جیسی نظر آ رہی ہو، تو ایسی شکلوں کو تشاکل کہا جاتا ہے۔ مماثلت اور مطابقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ادب کے مطابق ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں اور ریاضی کے مطابق اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو چند جملے آپ کے سامنے ہیں، ان جملوں پر غور کریں اور تشاکل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جملوں میں تشاکل کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، انسان اور بندر کے خد و خال میں کچھ تشاکل پایا جاتا ہے۔ انسان اور بندر کے جسمانی اعضاء اگر آپ دیکھیں گے، بناوٹ ان کی دیکھیں گے تو یکساں نظر آتی ہیں۔ آنکھیں دیکھیں، دو آنکھ بندر کو ہیں، دو آنکھ انسان کو ہیں، دو ہاتھ بندر کو ہیں، دو ہاتھ انسان کو ہے۔ پیر بندر کو دو ہیں تو انسان کو بھی دو پیر ہے۔ کچھ ایسی ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہی تشاکل کی مثالیں ہیں۔ دونوں شعراء کے کلام فکری اور فنی تشاکل نمایاں ہیں۔ دوسرے جملے پہ غور کرے تو اگر دو شاعر ہیں تو ان کی غزلیں اگر ہم قافیہ ہو اور ردیف ہو، ایک جیسے ہوں، بحر ایک جیسی ہوں، تو ان کے بھی خیالات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ یہی ان کا تشاکل ہے۔ ان کے انداز گفتگو میں حیرت انگیز تشاکل دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ منور رانا کو دیکھیں گے اور منور رانا کے فرزند کی آواز سنیں گے تو آپ کو اس میں تشاکل نظر آئے گا۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے نظام میں ایک خاص طرح کا تشکل موجود ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے انداز میں اکثر تشکل پایا جاتا ہے۔ میدان پر اگر دو بچے کھیل رہے ہیں تو دو بچوں کا کھیلنے کا انداز، اگر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو بالنگ کرنے کا انداز ایک ہو سکتا ہے، سکس مارنے کا انداز ایک ہو سکتا ہے، فیلڈنگ کرنے کا انداز ایک ہو سکتا ہے، یعنی ان میں تشاکل پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ادب کے مطابق ہم نے تشاکل کے معنی دیکھے۔ اب ہم ریاضی کے مطابق اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ ریاضی کے اندر کہا جاتا ہے کہ شکل و صورت بالکل ایک جیسی ہوں۔ شکلیں جن کے جو ایک جیسی ہوں وہ تشاکل کی مثال ہے۔ اب آپ دیکھیں گے دو دائرے ہیں یا ایک دائرہ ہے، ایک دائرے کو بیچ میں سے آپ نے ایک تشاکلی محور بنایا اس کا اور اسے موڑ دیا تو دائرے کا ایک حصہ دوسرے حصے پر منطبق ہو جائے گا، یعنی وہ ڈھپ لے گا اس کو۔ تو یہ تشاکل کی مثال ہے۔ کچھ زاویے، اینگل اور اضلاع کی بنیاد پر بھی تشاکل پایا جاتا ہے۔ کچھ شکلوں میں ایک شکل کو دوسرے پر رکھ دینے یا گھما دینے یا الٹ دینے پر وہ پوری طرح ایک دوسرے پر منطبق ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعریف بھی تشاکل کی ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ منطبق کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو منطبق ہے وہ لفظ، اور اس کے معنی ہے کہ جو کسی چیز پر ٹھیک سے بیٹھ جائیں، پوری طرح میل کھا جائیں، یا ایک دوسرے پر پورا چڑھ جانا یا ڈھک جانا، یا دو ایسی شکلیں جو ایک دوسرے پر منطبق ہوں۔ اس کی مثالیں نیچے ہے، ہم اس مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ شکل پر غور کیجیے، آپ اس شکل پر غور کیجیے۔ اس شکل میں ایک تشاکلی محور ہے۔ یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں بلیو رنگ کی،
तो ये तशाकुली महवर है। ये महवर शक्ल को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। चलिए हम एक का नाम रख देते हैं ए और इसका रख देते हैं बी। अब आप गौर करिए, ए और बी, अगर ए हिस्से को हम मोड़कर बी पर रखते हैं तो उस पर मुंतबिक हो जाता है। अगर हम बी को ए पर रख देते हैं तो ये ए पर मुंतबिक हो जाता है, यानी उसे पूरी तरह ढक लेता है। तो ये तशाकुल की मिसाल है और ये इसमें एक तशाकुली महवर बनेगा। इसके अलावा इसमें तशाकुली महवर नहीं बन सकता। यहां दूसरी शक्ल देखिए, यह है दायरे की। दायरे के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर कितने तशाकुली महवर बनाए जा सकते हैं, ये मरकज है उसका। अगर हम कहें कि एक अगर कुत्र उसका खींचा जाए मोहित से मोहित तक का फासला और मरकज से गुजर कर, तो ये एक कुत्र बना और ये एक तशाकुली महवर भी है। इसे आप तशाकुली महवर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दायरे को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है। अगर एक हिस्से को दूसरे पर मोड़ेंगे आप तो वो उस पर मुंतबिक हो जाएगा। यहां से ऊपर से अगर इस तरह करे तो ये एक इसका तशक्कुली महवर हो सकता है। ये भी उसका तशक्कुली महवर हो सकता है, ये उसका तशक्कुली महवर हो सकता है। गौर करें कि दायरे के बेशुमार तशक्कुली महवर बनाए जा सकते हैं। दायरे के बेशुमार, दायरे के 1 2 3 नहीं होते, बल्कि दायरे के बेशुमार तशाकुली महवर होते हैं। लेकिन इसके बाजू की इस शक्ल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ही तशाकुली महवर है, इसके अलावा इस शक्ल का कोई तशाकुली महवर नहीं बन सकता। अक्सर एग्जाम में सवालात आते हैं कि मंदरजा झैल हुरूफ के तशाकुली महवर बताएं। अब मैं चंद इसमें हुरूफ लेते हैं और उसके तशाकुली महवर देखते हैं। जैसे ए है तो ए का तशाकुली महवर होगा, ए का तशाकुली महवर होगा, ये देखिए यहां से, ये ए का तशाकुली महवर है और ए का एक ही तशक्कुली महवर होगा। इसके अलावा ए का तशक्कुली महवर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए सी का, अगर इसको दरमियान से अगर इस तरह एक तशक्कुली महवर खींचा जाए तो इसका भी एक तशक्कुली महवर होगा। उसके बाद देखिए एच का, एच को अगर दरमियान से इस तरह हमने एक तशक्कुली महवर खींचे या एक तशक्कुली महवर बनाएं तो इसका एक, और इस तरह अगर एक बनाएं तो इसके दो तशक्कुली महवर हो सकते हैं। ये लेंथ, इसके दो तशक्कुली महवर हो सकते हैं। आई का एक तशक्कुली महवर हो सकता है इस तरह का, इसके दो तशक्कुली महवर, ओ है ना ये, तो इसके दो तशक्कुली महवर हो सकते हैं। इसके दो तशक्कुली महवर हो गए, इसके दो तशक्कुली महवर हो गए। यू के भी दो तशक्कुली, डब्ल्यू का एक तशक्कुली महवर, वी का एक होगा, यू का एक होगा, एक तशक्कुली महवर होगा। एक्स के दो तशक्कुली महवर हो गए, वाई का एक तशक्कुली महवर होगा, जेड का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, टी का एक तशक्कुली महवर होगा, एन का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, एम का एक तशक्कुली महवर होगा। यहां मौजूदा शक्ल जैसी नजर आ रही है, अगर इसमें देखा जाए तो एफ का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, जी का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, एल का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, पी का कोई तशक्कुली महवर नहीं होगा, और के का भी अगर आप देखेंगे तो ये शक्ल भी तो ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा यहाँ बड़ा महसूस हो रहा है, इसलिए इसका भी तशक्कुली महवर नहीं होगा। इस शक्ल का तशक्कुली महवर नहीं होगा, इनके तशक्कुली महवर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अब तशक्कुली महवर बनाएं। मुसल्लस है और ये मुसल्लस है मसावियुल अज़ला मुसल्लस है।
जिसके तीनों ज़िले बराबर होते हैं। तो इसके हमें तशाकुली महवर बनाना है कि इसके कितने तशाकुली महवर होंगे। तो इसके तशाकुली महवर होंगे, यहाँ से पहला एक तशाकुली महवर खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से एक तशाकुली महवर खींचेंगे और यहाँ से एक तशाकुली महवर खींचेंगे। तो मुसल्लस के 3 तशाकुली महवर हो गए। मुस्ततील के कितने तशाकुली महवर हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। यहां से एक तशाकुली महवर, ये एक तशाकुली महवर, उसके बाद यहां से एक तशाकुली महवर, इसके 2 तशाकुली महवर हो गए। आप अगर कहते हैं कि इसके दरमियान बीच में वित्र इसके अगर बनाए जाए तो 2 वित्र भी इसके तशाकुली महवर होंगे, नहीं, क्योंकि अगर इसके वित्र बनाओगे आप, मुसल्लस के अगर वित्र बनाओगे तो 2 मसावी हिस्सों में वो तकसीम नहीं करता, तो इसलिए, और वो दोनों एक दूसरे को नहीं ढपेंगे। 2 मसावी हिस्से में तकसीम करेगा लेकिन वो एक दूसरे पे मुंतबिक नहीं होंगे, इसलिए इसके सिर्फ मुस्ततील के सिर्फ 2 तशाकुली महवर हो गए। अब दायरे के तो मैं बता चुका हूं कि दायरे के लामहदूद तशाकुली महवर होते हैं। मुरब्बे के कितने तशाकुली महवर होते हैं? तो मुरब्बे के होते हैं 1, 2, 3 और ये 4। मुरब्बे के 4 तशक्कुली महवर हो गए। आइए जिन सवालात दिए गए उन सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। एक मुरब्बा स्क्वायर के कितने तशाकुली महवर होते हैं, यानी एक मुरब्बे के कितने तशाकुली महवर होते हैं। अब इससे पहले शक्ल में हमने देखे हैं कि मुरब्बे के 4 तशाकुली महवर होते हैं, तो इसका जवाब होगा 4। सवाल है एक मुस्ततिल के कितने तशाकुली महवर होते हैं। एक मुस्ततिल के 2 तशाकुली महवर होते हैं। एक दायरे के कितने तशाकुली महवर होते हैं। एक दायरे के लामहदूद तशाकुली महवर होते हैं। मुसल्लत मुतसावी साक़ैन के कितने तशाकुली महवर होते हैं। और ऐसा मुसल्लस जिसकी 2 साख मुश्तरिक हों, बराबर हो, ऐसी शक्ल, जैसे अगर ये 3 सम है, ये 3 सम है और ये 2 सम है, तो ऐसी शक्ल को कहा जाता है मुतसावी साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है। तो इसके तशाकुली महवर सिर्फ 1 होगा, इसका 1, तो इसका जवाब होगा अलीफ। हर्फ ओ के कितने तशाकुली महवर होते हैं। ओ के 2 तशाकुली महवर हो गए। कौन सी शक्ल के वित्र भी इसके तशाकुली महवर होते हैं, हमने देखे मुरब्बे के होते हैं, वित्र भी उसके तशाकुली महवर होते हैं। एक्स के कितने तशाकुली महवर, एक्स के 2 तशाकुली महवर होते हैं। सवाल नंबर 8 है हर्फ जेड के कितने तशाकुली महवर होते हैं। तो जेड के 0 तशाकुली महवर होते हैं। अगर किसी शक्ल के दोनों हिस्से महवर के हवाले से आईने की तरह एक दूसरे पर आ जाएं तो इस खासियत को क्या कहते हैं। इस खासियत को कहा जाता है तशाकुल। सवाल है 9वां और आखिरी सवाल है कि 8 के कितने तशाकुली महवर होते हैं। 8 के 2 तशाकुली महवर होते हैं। ठीक है, ये आपको सवालात अच्छी तरह आपके समझ में आ गए होंगे।